ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੀ ਜਸ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਨੇਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲੰਘਿਆ, ਸਿਰਮੌਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਵਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਅਫਜ਼ਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ, ਭਾਈ ਮੋਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਛਬੀਲ ਦਾਸ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਧ ਦੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕੰਵਰ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਾਦਾ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਚਾਂਦ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ 10, 11, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸਹਿਜਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਈ, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਨਾਰਸ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਫਰੀਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਰ ਭੰਤਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਨ ਨੇ, ਭੇਖ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ,
आत्मा सारियां दी इक्को ही है। और जद कोई आत्मा दे तल ते जीण लग पैंदा है, उहदी पहली पहचान समदृष्ट हो जाता है। ये पहली पहचान है। और इस तरह का संदेश सारी दुनिया नूं दिता जा सके, केंद्र केवल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, इस तरह का होर कोई केंद्र भी नहीं है। सिर्फ अल्लाह दी धुन गूंजदी है गुस्ताखी माफ इस्लामी धर्म ग्रंथां च, सिर्फ राम दी धुनी गूंजदी है सनातनी मत दे ग्रंथां च। केवल इक्को ही महान ज्ञान दे सागर ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। गुरु गुरु गुर करम अनमोल, गुरु दी धुनी गूंजदी है, राम दी धुनी गूंजदी है, अल्लाह दा भी आलाप चलदा है। पूजा पाठ दी भी गल है, नमाज दी भी महिमा है। बेनमाजां कुत्तिया ए ना भली रीत, कदी चल ना आया पंजे वक्त मसीद। इतने शब्द मैं इस वास्ते लए ने कि सानू अपना पिछोकड़ वेखना चाहिए और गुरु नानक दा सिद्धांत, ताकि असी गुरु ग्रंथ साहब दा संदेश सारी दुनिया च ले जा सकीए। खैर, धन्यवाद कर दिता है महान कीर्तनियां दा, और ये गाहे बगाहे देश देश प्रदेश देश मिलते रहंदे ने। उद्यम है इन्हां दा, थानू हरिजस सरवण कराया। आइए हुण जो चल रही है लड़ीवार कथा, पिछले साल तो आरंभ की सी थोड़े कहे मुताबिक। अज इस सुणीए दियां पौड़ियां आरंभ हो रही ने, और इस दे मूल पंक्ति यह है, नानक भगतां सदा विगास। भगतां दे मन दे सदा खेड़ा रहिंदा है, कोई फुल भी सदा खिड़िया नहीं रहिंदा। ये भी महर्स करते हैं। कोई खुशी भी किसी कोल सदा नहीं आउंदी, हासे भी सदा नहीं आउंदे ने। वक्ती हासा हुंदा है, फिर रोना ही आउंदा है। वक्ती सुख आउंदे ने, फिर दुख ही आउंदा है। वक्ती दिन नूं फुल खिड़ गए ने, रात नूं मुरझा गए ने। सदीवी खेड़ा किधरे भी नहीं है। पर महाराज कहते नानक भगतां सदा विगास। भगतां कोल सदीवी खेड़ा है, या इंज कह लो जिस कोल सदीवी खेड़ा है वही भगत है, दूजा भगत भी नहीं है। इंज कह लो। ऐसा खेड़ा है, सोने दे सिंगासन ते बैठा है, खिड़िया होया है, पर तत्ती तवी ते बैठा है, खिड़िया होया है। ऊपर चौर हो रही है, खिड़िया होया है, पर कोई जो जला तलवार नाल गर्दन अलग कर रहा है, खिड़िया होया है। जिस तरह गुरु ने अपना स्वरूप पेश किया, नक्शे कदम ते चल के सिख भी उस तरह होए। जैसे कि भाई मनी सिंह दा उदाहरण, पैरां दे बंद कटे, हत्थां दे बंद कटे, गर्दन दी वारी आई ते भाई मनी सिंह कहंदे ने जलाद ऐ सिर्फ 2 पौड़ियां रहिंदियां ने, पढ़ लैण दे जपजी साहब दियां, कट दें गर्दन। पाठ कर रहे सन भाई साहब, पाठ दा रूप होए सन। ये 2 पौड़ियां पढ़ लैण दे। जलाद कहंदा नहीं, इस तरह दी मैनू आग्या नहीं है, मैं तो बिना रुके सारा काम करना है। तलवार चलाई, गर्दन अलग कर देती। कवि संतोख सिंह जी कहंदे ने, रोम रोम दे चों जपजी साहब दे पाठ दी आवाज जारी सी, पाठ दी समाप्ति होई, भाई साहब जी दे प्राणां दा अंत होया। गुरुमुख रोम रोम हर दयावे। सदीवी खेड़ा है, चाहे कोई सत्कार कर रहा है, खिड़िया होया है, किसी ने तिरस्कार कर दिता है, खिड़िया होया है। नफा हो गया है, खिड़िया होया है, पर नुकसान हो गया है, खिड़िया होया है। मनुख दा खेड़ा किसी हद तक बंधन दे छे, स्वतंत्र नहीं है।
नफा होवेगा तो वक्ती खिड़ सकता है, नुकसान दे च नहीं खिड़ सकता। इज्जत मिली वक्ती तौर पर खिड़ सकता है, बेइज्जती दे च नहीं खिड़ सकता। हर हालत दे जिस कोल विकास ही विकास है, खेड़ा ही खेड़ा है। महाराज कहते हैं ओही भगत है। तो मैं फिर दोहरा दिया, भगतां कोल सदीवी खेड़ा है या जो सदीवी खिड़िया होया है ओही भगत है, दूसरा भगत नहीं है। नानक भगतां सदा विगास, पर इस सदीवी विगास उन्होंने प्राप्त किस तरह होता है? सुनिए दुख पाप का नास। दुख ते पाप दोहां दा जिक्र इकट्ठा क्यों कीता है? क्योंकि दुख दा बीज है पाप। मैं फिर दोहरावां, दुख दा बीज है पाप। सारे दुख पाप तो पैदा होंदे ने। ते फिर इत्थे प्रश्न पैदा होवेगा, पाप की है? वास्तविक पाप की है? हुण इह ते अजे तक भी मैनूं पूरी समझ नहीं, और ऐसा मेरा अपना अनुभव ही है। अगर एक क्लास दे च भी कोई विद्यार्थी बैठे ने तो सारे एक स्टेज दे नहीं होणगे। जे 5वीं च बैठे ने, 8वीं च बैठे ने, 10वीं च बैठे ने, वो सारे विद्यार्थी भी एक स्टेज दे नहीं होणगे। मानसिक स्टेज उन्हां दी सारियां दी अगे अगे होवेगी। भावें एक क्लास दे च बैठे ने, पर मानसिक तल ते जरूर अगे पिछे होणगे। एक क्लास दे च भावें इक्को ही संगत दे च बैठे ने सारे, श्रोतियां दी मानसिक स्टेज हर एक दी अलग अलग होवेगी, हर एक दी अलग अलग। कोई अगे होवेगा, बहुत अगे होवेगा, कोई मध्य च होवेगा, कोई बिल्कुल पछड़े होया होवेगा, कोई बिल्कुल पिछे होवेगा। पाप की है? वास्तविक पाप की है? ईसा जो ईसाइयां दा रहबरी पुरुष है, शौक नाल शराब पी लैंदा सी। दीन इस्लाम दा जन्मदाता मुहम्मद उठदा मास भी शौक नाल खा लेंदे सन, गऊ दा ते खांदे ही सन। स्वामी राम कृष्ण परमहंस हरे रामा हरे कृष्ण मिशन जिन्हां दा अज सारे यूरोप दे च भी फैलिया, इधर अमेरिका ते कैनेडा दे विच भी। ये बिना मछली तो चावल खांदे ही नहीं सन बंगाली। इक्को ही है द्रौपदी ते ओदे पति पंज ने, इतिहास दे च देवी बनी हुई है। इतिहास उसनू देवी कहंदा है, देवी है। पति पंज ने, पंचाली है। पांडवां दी पत्नी है, पंचाली देवी है। किसी ने उसनू पतिता नहीं आख्या, कुलछणी नहीं आख्या। इस्लाम दे च इजाजत है एक पुरुष दियां 4 पत्नियां हो सकदियां ने, और उसनू कतई कोई काफर नहीं कहंदा भी 4 औरतां ने ये ते काफर होवेगा। नहीं, कोई काफर नहीं, वो मुसलमान है, वो दीनदार है। तो फिर किसनू पाप आखोगे? पुण्य की है, पाप की है? किसनू पुण्य आखोगे? पाप की है? हर मजहब दे च, हर धर्म दे च अपनी अपनी गल है, अपनी अपनी खेड है। किसी वक्त भारत दे च स्वयंवर समाजिक क्रिया सी, और धर्म दी दुनिया च भी काबले कबूल सी। स्वयंवर खुद वर चुनना, आप वर चुनना। बच्चियां अपना वर खुद चुनदियां सन, मां बाप नहीं चुनते सन। यूरोप ते अमेरिका ने जिसनों अज अपनाया है, जिस रस्म नो, ये भारत दे च पहले फेल हो चुकी है, हजारों साल पहले फेल हो चुकी है। स्वयंवर, बच्ची अपना वर खुद चुने। मां बाप क्यों चुनन? जिंदगी कटनी है बच्ची ने, वो अपना वर खुद चुने। खुल सी, आजादी सी।
इसनूं स्वयंवर कहते सन। स्वयंवर खुद वर चुनना है, आप वर चुनना है। मां बाप क्यों चुनन, समाज क्यों चुने? बच्ची अपना वर खुद चुनेगी। सहजे सहजे इस खुल का नतीजा यह होया, फोके जज्बियां दे तहत बच्ची वर चुन लैंदी सी, निभदी नहीं सी। रिश्ते टुटदे सन, बच्चे रुलदे सन। जो दुखांत अज यूरोप ते अमेरिका भोग रहा है, ये पहले भारत भोग चुके है। ये भी मैं अर्ज कर चुके हैं। जब भारत सोने की चिड़िया सी तो सारी दुनिया के लोग धन कमाने लिए भी हिंदुस्तान ही जाते सन। अफगानी जाते सन, ईरानी जाते सन, अरब जाता सी, डच गए, पुर्तगेज गए, मंगोल गए, फ्रेंच गए, फिर बाद विच अंग्रेज भी व्यापारी बन के व्यापार करने लिए गए। सारियां दी निगाह दा केंद्र हिंदुस्तान, सोने दी चिड़िया। दौलत नाल माला माल देश सी उस जमाने, सब दा शिखर। दुनिया दा व्यापारी, दुनिया दा राजनैतिक, दुनिया दा कलाकार हिंदुस्तान दी तरफ जांदा सी। यही कारण है कि प्राचीन कला लईए हिंदुस्तान दी ते शिखर ते पहुंची हुई है। संग तराशी, चित्रकला, संगीत दी कला हैरानगी है। सारा दिमाग उत्थे इकट्ठा हो गया सी। सोने दी चिड़िया सी। सहजे सहजे जो व्यापारी बन के गए, राजनैतिक बन के गए, काबज हो गए, देशवासियों को गुलाम कर दिता। ते देशवासियों की धन दे कोई बहुती रुचि भी नहीं रह गई सी। जैसे कहते ना, मच्छी पत्थर नूं चट के मुड़दी है, वो मुड़ पै सन। राजकुमार जोगी बनन लग पै सन। कहते सन नहीं, देख लिया धन धर्म चाहिए, देख लेने पदार्थ परमात्मा चाहिए, देख लिया संसार निरंकार चाहिए। राजियां दे लड़के भी स्मारक ते चलते सन और इस तरीके नाल धर्म दी दुनिया उथे पैदा हुई। संसार देख लिया सी रज के, ते संसार तो बेफिक्र होए तो होया कि गुलाम हो गए। व्यापारी जो गए मालिक बन गए, राजनैतिक जो गए मालिक बन गए। फिर लुटेरियां नूं भी खुल मिल गई, बाबर जैसियां नूं, दुरानी जैसियां नूं। देश गुलाम होया। जब देश संपन्न सी, सोने दी चिड़िया सी, उत्थे उस वक्त ये रस्मां प्रचलित हुई और वाकई सुखियारे समाज दे च सब कुछ हो जाता है। समाज सुखियारा हो गया सी, बहुत संपन्न हो गया सी, अमीर हो गया सी। स्वयंवर, बच्ची अपना वर खुद चुने, मां बाप क्यों चुनन? जिंदगी कटनी है बच्ची ने, मां बाप ने थोड़ी कटनी। उन्होंने कट ली जिस तरह कट ली, अगों बच्ची ने कटनी, अपना वर खुद चुने। सीता भी अपना वर खुद चुनदी सी। रावण दी भैन स्वरूप नखा घर की इजाजत तो बिना वरमाला पहनांदी है लक्ष्मण नूं। स्वयंवर, यह गल वखरी है, लक्ष्मण ने ठुकरा दिता। उन्हें आख्या नहीं, एक ते मैं बनवास कट रहा 14 साल का, भरा दे नाल घरों निकले सन। दूसरा, ता जिंदगी विआह न करन दा मैं प्रण कीता है। तू ये वरमाला मैनू ना पहना। इसका मतलब है इतने वड्डे राजे दी बहन लंकेश, वो अपना वर खुद चुनदी है, भरा नूं दसे बिना, मां बाप नूं दसे बिना, और कोई इल्जाम नहीं। ये इतिहासक स्त्रियां ने हर बच्ची अपना वर खुद चुनदी सी। जैसे असीं कहंदे हां, धन गुरु अमरदास जी दे लंगर दी पंगत विच अकबर भी आके बैठा। हजारां सिंह रोज बैठते सन, हजारां भगत रोज बैठते सन, पर चूंकि अकबर इतिहासक मनुख है, इसका जिक्र करना पैंदा है।
अकबर तवारीखी इंसान है, इसका जिक्र करना पैंदा है, वरना हजारां लोग रोज आंदे सन तो द्रौपदी का जिक्र, सीता का जिक्र, मदोदरी का जिक्र, स्वरूप नखा का जिक्र, क्योंकि इतिहासक स्त्रियां ने। स्वयंवर से ये प्रथा फेल हो गई। बच्ची भावुक होंदी है और स्त्री के अंदर भावना उंज भी प्रधान होंदी है, विश्वास भरोसा बहुत प्रधान होता है। भावुकता वस होके भरोसा कर लेंदी सी, वरमाला पहना देंदी सी, अगों रिश्ते निभदे ने सन, टुट जाते सन, बच्चे रुलदे सन। समाज ने फैसला किया ये रस्म बंद, हुण नहीं। जेड़ी बच्ची खुद वर चुनेगी वो कलंकित होवेगी, समाज उसनूं दोषी ठहराएगा। तो हिंदुस्तान की प्रथा बन गई वो बच्ची बदचलन है, क्योंकि उसने समाज का कानून तोड़ दिता। पर कल तक तो ऐसी गल नहीं सी, कल तक तो स्वयंवर खुद वर चुनदी है द्रौपदी, वर चुनदी है सीता, वर चुनदी है स्वरूप नखा, उन्होंने ते कोई इल्जाम नहीं। कल तक जो पुण्य सी अज पाप किस तरह हो गया? समाज दीयां रस्मां ने इनू पाप पुण्य दे च नहीं लेना। यह भी मैं अर्ज करा, कुछ खान पान के आधार नू पाप पुण्य दे च लिया तो फिर ईसा ते मुहम्मद साहब नू असीं स्वर्ग दे च नहीं मन सकते, खुदा नाल जुड़ियां हुई आत्मावां नहीं मन सकते। यह भी मैं अर्ज कर दें, अपने अपने ढंग ने, अपने अपने तौर तरीके ने। और मैं तो इशारतन इतना ही कह सकता हाँ, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, बाबा होर खाना खुशी खुआर, केड़ा खाना जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। सनातन मत दे कुछ साधु दुध भी नहीं पींदे, कहते लिक्विड मास है, खून चो बनता है, मास का तत्त है, निचोड़ है, नहीं पींदे। ये भी मैं अर्ज कर दें, अलवर समागम दे मंदसौर तो 2 साल पहले 2-3 संत आए सनातन मत दे, दुध पीण तो भी इनकारी। कहने लगे नहीं, चाह पीनी है पर कहवा दुध ना पायो। बाद विच पता चलिया दुध नूं हथ भी नहीं लांदे, कहंदे मांस है, लिक्विड मांस है, ठोस मांस नहीं है, सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, मांस है, असी नहीं पींदे। कहंदे कुछ मांस ऐसा है खाया जाता है, कुछ मांस ऐसा है पीता जाता है। उन्हां दी अपनी व्याख्या, उन्हां दे अपने ढंग, उन्हां दे अपने तौर तरीके। खैर की पाप है, की पुण्य है, किस तरह लोग है? जिस कर्म तो किसी मनुख नूं चोट पहुंचे और उसका मन दुख नाल पीड़ित हो जाए, किसी की इज्जत नूं चोट पहुंचाई जा सकती, बेइज्जती करके असमत नूं चोट पहुंचाई जा सकती, किसी दे तन नूं चोट पहुंचाई जा सकती है, किसी दी धन संपदा नूं चोट पहुंचाई जा सकती है, किसी दी इज्जत मान मर्यादा नूं चोट पहुंचाई जा सकती है। और चोट किसी थां ते भी पहुंचाओ मन ते दुखी होवेगा। किसी दी धार्मिक भावनावां नूं चोट पहुंचाई जा सकती है। बस यही पाप है, इस चो दुख पैदा होता है। जब मेरे किसी कर्म नाल अगला रोया है, दुखी होया है, ये दुख पलट के वापस आएगा, लाजमी आएगा। और जिन्ने चिर तक पाप ना मिटन दुख नहीं मिटते। पाप दी छाप ना मिटे, कीते हुए पापां दी छाप ना मिटे, तां भी दुख नहीं मिटते। पाप मिट गए ने, पहचान की होवेगी? वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां कतई कीते पाप चेते ना आवन, मिट गए ने, धुल गए ने, ये पहचान है। बाणी पढ़दियां कीते कर्म चेते आ रहे ने, नहीं धुले, बस ये पहचान है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਧੁਲੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਧੁਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ, ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਤਖਤੀ ਤੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਖੇੜਾ। ਕਿਉਂ? ਸੁਣੀਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਾਪੀ ਤੇ ਕੁਰਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਖਿੜੇਗਾ? ਖਿੜਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੋਗ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੋਗ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੋਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਸਭ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਗ। ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗੀ ਨੇ? ਔਸਤ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗੀ ਨੇ? 100 ਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗੀ ਨੇ? 10 ਰੋਗੀ ਨੇ, 20 ਰੋਗੀ ਨੇ, 30 ਰੋਗੀ ਨੇ, 40% ਰੋਗੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ। ਅਗਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਸਥ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। 1000 ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। 999 ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਮਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ।
एक फली बहुत होया। तो कहा जा सकता है ये जिहड़ा एक फली बहुत होया ये गैर सुभावक है। इस वास्ते भगतां दे आनंद ते खेड़े नूं देख के प्राचीन जमाने ते हुण भी कह दिता जाता कोई पागल ही लगदे ने, पागल ही लगदे ने। नुकसान हो गया ते खिड़े होए ने, बेइज्जती हो गई है ते खिड़े होए ने। अकाली कौर सिंह मैनू चंगी तरह याद, कश्मीर दे श्रीनगर गुरुद्वारे सिंह सभा च कथा करके बाहर आए ने। किसी ने करारियां 3-4 गालां कढ़ियां। उन्हां दे नाल रहण वाले संत फकीर सिंह ने मैनू दसिया काफी लंबे समय तक श्री गुरु सिंह सभा कीर्तन भी करते रहे। जम्मू दे वो कीर्तन भी करते रहे। 3-4 गालां बड़ियां करारियां कढ़ियां, माड़ियां मोटियां ने, क्योंकि कथा च कुछ ऐसे विचार कहे जो उन्हां दे अनुकूल नहीं सन। आपे तो बाहर हो गए, जबत ना कर सके, करारियां 4 गालां कढ़ दित्तियां ते झोली अड के खड़े हो गए ते हसदे होया कहने लगे कोई होर गप्फा गुरमुख पै रहा, कोई होर गप्फा है तो भी पा दे। तो कहने लगा महापुरखो मैं थानू गालां कढ़ियां ने। ते अकाली कौर सिंह जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा तत्करा लिखिया है, कहने लगे कौर सिंह मर गया जिथे तक दुनिया दीयां गालां पहुंचदियां सन। मैनू गाल कढ़नी सी ते कम से कम 5-7 साल पहले कढ़दा, मेरे तक पहुंचनी सी, हुण नहीं पहुंचदी। और तू कढ़ पिया। मैनू गाल ही कढ़नी सी ते 5-7 साल पहले मिलना सी मैनू, हुण नहीं। हुण ते असीं उस दुनिया दे मालिक हां, उत्थे रहिंदे हां जिथे तेरियां गालां पहुंचदियां नहीं, ते जिहड़ी चीज मेरे तक पहुंची नहीं तो मैं तेनू की जवाब दें। मेरे तक नहीं पहुंची। ऐसे भी लोग ने, निक्की जिहा गल कोई कह देंदा है, अगला कहंदा है मैं गुरुद्वारे ही नहीं आना, कल तो आना ही नहीं। बथेरे लोगों को मैं इस तरह सुन लेना, नहीं जी उत्थे इन्नी गल आख दी गई है। मैं कहा हद हो गई, घर दे च माड़ी मोटी गल हो जाए तू कहना मैं अज घर नहीं जाना, छोड़ देगा घर ते तू चला जाना। भावें पुत्र ने कुछ ऐसी वैसी गल आख दी है, पत्नी ने आख दी है, पति ने आख दी है, मां बाप ने आख दी है, तो इंज ते नहीं कहता अज मैं घर नहीं जाना। तो एक गल जे तेरी समझ च नहीं आई तो आखी गई है, तो तू आखें मैं कल तो गुरुद्वारे ही नहीं जाना, गल स्पष्ट हो गई। गुरुद्वारा तू छोड़ना चाहता सी, बहाना तेनू चाहिदा सी, मिल गया, वो मिल गया तेनू। गल इतनी है, हकीकत है। मैं अर्ज करा अगर 1 करोड़ दे पिछे कोई 2-4 मनुख ऐसे ने मन दे तल ते आनंदित ने ते तन दे तल ते स्वस्थ ने, तो ये कोई गिणती नहीं है, बहुत वड्डी गिणती नहीं है। कोटन में नानक को नारायण जय चीत, करोड़ां च कोई इक्कत, करोड़ां च। जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख होए पछाना, कोई करोड़ां च इक्कत गुरमुख जिसनों पहचान होई है, समझ होई है, ते जिसदे हिरदे च प्रभु है, जिसदे दुख ते पाप नाश हो गए, जो तन दे तल ते स्वस्थ है ते मन दे तल ते आनंदित है। महाराज कहते रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। बड़े बड़े संत में देखे ने, मैं अर्ज करा असाध रोग दे च ग्रसे हुए, सोग चिंता दे च फसे, उन जगत दा समाधान लभदे ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। पर थोड़ी श्रद्धा बिल्कुल अश्रद्धा ना हो जाए, थोड़ा कारण भी दसते हैं। जिस मनुख दा लेखा इसे ही जन्म दे च निबड़ना होवे ना, निबड़दा है। नानक जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया।
गल खत्म। साडा अगला जन्म नहीं होवेगा इस तो। ये पंक्ति दियां ये विचारां ने। धर्म राय दर कागज फारे जन नानक लेखा समझा। साडे ओ कागज फाड़ दिते गए ने जिन्हां दे मुताबिक अगला जन्म चलदा सी। गल खत्म। सूक्ष्म शरीर मिट गया, कर्मां दा ढांचा टुट गया। इस तरह के मनुख भी महान रोगी देखे गए ने। संत बाबा अतर सिंह दी सज्जी लत गल गई सी, सज्जा पैर। भरी संगत विच बिठंड विच सप ने डंग मारिया सी। संगत दे विच सप आया, डंग मार के नसिया, फिर संगतां नूं भी दिखाई दिता है, बाबा जी नूं भी दिखाई दिता। दो बंदे लाठियां लेके भजे, रोकया संत ने। बाबा अतर सिंह कहन लगे एक कर्जा ते निबड़ गया, हुण मार के फिर मेरे ते कर्जा चाड़ना है। एक कर्जा निबड़ गया साडा, गल खत्म। और यही ते कर्जा रहिंदा सी साडा, निबड़ गया। हुण ये अकाल पुरख दी खेड, अकाल पुरख जाने। इलाज भी बड़ा होया, लत ठीक नहीं हुई सी। और बाबा अतर सिंह कहंदे रहे नहीं, इनू भोग लैण दो, ये चलेगा। 3 साल होए ने। स्वामी कृष्णानंद गुजरे ने, महर्षि रमन गुजरे ने, जिन्हां दी बड़ी प्रतिष्ठा ते बड़ी गल ते हिंदू जगत कहंदा सी ब्रह्म ज्ञानी ने। कंठ दा कैंसर सी, गले दे च कैंसर सी। हरे रामा हरे कृष्णा जिन्हां दा पंथ सारी दुनिया चलिया इस वक्त, बड़े मस्त हो के कई गीत गांदे ने। 3 साल कंठ दा कैंसर सी, गले दे च कैंसर सी। गला सुज गया सी, जख्म बाहर भी झड़न लग पे सन। हैरानगी हो जाती है। इस तरह के कुछ होर भी मैं रसक पुरुष देखे ने, जुड़िया हुई आत्मावां देखिया ने। एक ही है। इसनों मैं इस तरह उदाहरण देना होना, पता नहीं थोड़ी तसल्ली होगी कि नहीं। एक एकड़ दा सरोवर है, उस दे च पानी है और वो 5 फुट गहरा है, और 1 एकड़ जमीन है। इंज कह लो 5000 गज हिंदुस्तानी नाप तोल दे मुताबिक 5000 वर्ग गज जमीन है। सरोवर है इतना बड़ा, और सरोवर की गहराई है 5 फुट। हुण 5000 गज दे विच जो सरोवर है, इनू हुण 500 गज दे च करना है। ये सारा पानी 500 गज दे च लेना है। 500 वर्ग गज, पहले 5000 सी, हुण 500, तो गहराई ते वध जाएगी। हुण उस हिसाब नाल तुसी खुद अंदाजा लगाओ वो कितना डूंगा हो जाएगा पानी। उत्थे डूंघियाई ते वध जाएगी। ਜਿਹੜੇ दुख कई जन्मां च भोगने आउंदे ने, 100 साल 2 साल दे च भोगने ने, इसे ही जन्म दे च भोगने ने। दुख बड़े गहरे हो जाते हैं, अगे नहीं, इसे ही जन्म च भोगने ने। हुणे ही गल निबड़े, दुख बहुत गहरे हो जाते हैं, उन्हां दी गहराई वध जाती है। कुछ पुरुष ऐसे जो आत्म रस दे च लीन ने ते फिर भी शरीरक तल ते रोगी, मानसिक तल ते सोगी नहीं होणगे। मानसिक तल ते आनंदित, मानसिक तल ते खिड़े हुए, शरीरक तल ते रोगी। मैं इन्हां अखां नाल बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी देखे ने, शरीरक तल ते रोगी। तो ऐसा अनुभव दे आया, ऐसे जन्म में खेड निबड़ रही है, गल खत्म हो रही है। भोगे बिन भागे नहीं, कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता, मिटदा ही नहीं। पूर्व लो कृत कर्म न मिटेरी घर गैन,
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ। ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, तो उसका दुख दूसरा किस तरह भोगेगा, तीसरा किस तरह भोगे। वो दुख ते मैं ही भोगांगा, मेरे नाल कोई सहानुभूति कर सकता है, हमदर्दी कर सकता है। हमदर्द तो मुराद दूजे दा दर्द मैं महसूस करदा, हमदर्दी। इनू हिंदी संस्कृति च कहंदे ने सहानुभूति। दूजे दा दुख मैं महसूस करदा, हमदर्दी। लेकिन दूजे दा दर्द महसूस करन नाल दूजे दा दर्द मिटते नहीं जाता, दूजे दा दुख खत्म ते नहीं हो जाता। हमदर्दी जताण नाल कोई दर्द अगले दा मिटते नहीं जाता, खत्म ते नहीं हो जाता। वक्ती तौर ते थोड़ी जिहां तसल्ली आउंदी है, जिन्हों परचावनी कहते हैं, बस एवं अगले दा मन परचावना है। परचावनी का इन्ना ही मतलब है, अगले दा मन परचा दईए थोड़ा, और परचावनी का की मतलब, थोड़ा परचा दईए, थोड़ी तसल्ली करा दईए, थोड़ा इस दे ख्याल नूं बदलीए, हमदर्दी जता के दुख ते भोगना पेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी कहती है, जिथे तक संसार ते निगाह मारीए खेड़ा नहीं है, सदीवी खेड़ा नहीं है। हां सदीवी रोग है, सदीवी खुशी नहीं है, हां सदीवी दुख है। जो जो दी से सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। फिर पातशाह इत्थे तक कह देंदे ने, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकसियो कोय। हर बंदा दुखां दी पंड है और कुछ भी नहीं है। जरा खोल के देखो, सिवाय दुखां तो होर कुछ भी नहीं निकलता। या मनुख अपने रोग की गल करेगा या अपने सोग की चिंता की। जरा खोल के देखो। तो मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, दूजे नूं खोलना की है, दूजे नूं किस तरह खोलीए। बस अपना एक रोग बयान करो, अगले दे 10 रोगां की गल सुननी पेगी। अपनी एक चिंता किसी दे अगों रखो, अगले दियां हजारां चिंतावां की गल सुननी पेगी। सियाणे मनुख अपनी चिंता कतई किसी दे अगों नहीं रखते, और अपने रोग की व्याख्या भी किसी दे अगों नहीं करते। ये भी महर्स करते हैं। एक आलम ऐसा कहता है, मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है। कहता मैं जीवन भर अपने मत्थे ते दुख नूं प्रगट ही नहीं होने दिता, प्रगट ही नहीं होने दिता। मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहता डुबया मैं भी हां, गोते मैं भी खादे ने, पर मैं ये नहीं आखे ले मैं डुब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डुब गया जी। ये रोला मैं नहीं पाया। ये फकीर तबीयत इंसान इंज कहता, कोई जरा रोला पांदा जी, मैं डुब गया जी, मैं मर गया जी। कोई शांत रह जाता है, चुप रह जाता है। दुख दियां ये दो धारावां ने, तन दे च रोग बन के प्रगट होंदा है, मन दे च सोग बन के प्रगट होंदा है। और जो वास्तविक भगत है ते कर्मां दा निबेड़ा जिसदा हो गया है, महाराज कहते रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। हरी दे जन दे नेड़े तन दे च रोग नहीं आउंदा, मन दे च सोग नहीं आउंदा। तन करके स्वस्थ होंदा है, मन करके आनंदित होंदा है, खिड़े आउंदा है। नानक भगतां सदा विगास, सदी भी खेड़ा होंदा उन्हां कोल।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿੜੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਹਾਸੇ ਰੋਣਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਵਾਨੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ 'ਚ ਢਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਸੇ ਰੋਣੇ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਪ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣੇਗਾ तो फिर एक भी मुसलमान पुनीत नहीं, कोई फकीर नहीं है। ते जे मुसलमान अपने ढंग नाल देखे तो फिर कोई मोमन नहीं है, सारे ही काफिर ने। अपना दृष्टिकोण नहीं, प्रभु का दृष्टिकोण, ईश्वरी विधान का दृष्टिकोण उस सामने रखना पेगा। बाकी सारे समाजिक नियम ने। मेरे जिस कर्म तो किसी नूं भी चोट पहुंची है, किसी दे धन नूं चोट पहुंची है, किसी दे मन नूं चोट पहुंची है, किसी दी इज्जत आबरू नूं चोट पहुंची है, किसी दी आर्थिक ढांचे नूं चोट पहुंची है, या किसी दे शरीर नूं चोट पहुंची है, ये चोट पलट के वापस आउंदी है। दुख दिता होया पलट के वापस आ जाता है। इतनी मैं अर्ज करते हैं। भाई साहब, भाई गुरदास जी की पंक्ति भी थोड़े सामने रखते हैं। दिता लईए अपना, अण दिते किछ हथ ना आवे। जो जगत नूं दिता सी पलट के वापस आ गया, और कई गुणा वापस आया। दिता होया दुख कई गुणा पलट के वापस आंदा है। दिता होया सुख कई गुणा पलट के वापस आंदा है। रब दा नियम, जो मैं धरती नूं बीज नहीं दे सकता, मैं धरती कोल फल दी मंग भी नहीं कर सकता। और जैसा मैं बीज धरती नूं देना है, उस तो विपरीत, उस तो उल्ट कोई दूजे फल दी भी मैं मंग नहीं कर सकता। वही फल मैनू मिलेगा जो मैं बीज बोया है। आप बीज आपे ही खाए। उन्हां दे पाप नाश हो जाते हैं, इस करके दुख नाश हो जाते हैं। क्यों? परमात्मा का नाम सुनन करके। ते तुसी आखोगे बड़ा कीर्तन सुनिया सी ते बड़ी कथा सुनी है, बड़ा पाठ सुनिया, दुख ते मौजूद है। तन दे च रोग बन के मौजूद है, मन दे सोग बन के मौजूद है। बड़ा कीर्तन सुने और सुन रहे हैं, बड़ी कथा सुनी है, सुन रहे हैं। कथा सुनत मन हरिया होवे, मन बाग बाग हो जाता है, ऐसा नहीं दिखाई देता। कीर्तन सारी मैल धो देंदा है, ऐसा नहीं दिखाई देता। बहुत सुने हैं, बहुत सुने हैं। तो इत्थे दो तरह की तरक खड़ी हो सकती है। या तो सुनिया ही नहीं, क्योंकि रोग जो मौजूद है, सोग जो मौजूद है। या फिर नास्तिकां दा दूजा तर्क, नाम दे सुनन नाल कोई दुख नहीं मिटदे, कोई सोग नहीं मिटदा, रहिंदा है। इन्हां दोहां दे च ते एक गल मननी पैगी। गुरुद्वारे आने वाला आस्तिक है तो कबूल करना पेगा, नहीं सुनिया। दुख मौजूद है, नहीं सुनिया परमात्मा का नाम। सोग मौजूद है, नहीं सुनिया परमात्मा का नाम। सुनन की कितनी महिमा है, और वास्तविक वो स्रोत की है। भगत ते कबीर दा एक बड़ा कीमती श्लोक, कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक बचन सतगुर सूर में दा आया। बचन दे पिछे ताकत चाहिए, किसी आध्यात्मक
पुरुष दा बोल होवे, क्योंकि आउंदा ही परमात्मा तो है। जैसे में आवे खसम की बाणी, उस बोल दे च जान होंदी है और वो बोल अमर होंदा है, उस बोल दी शक्ति होंदी है। वो बोल कदी पुराना नहीं आउंदा, बाकी सारे बोल पुराने हो जाते। किसी महान कवि की कविता भी 3 दफा तो ज्यादा नहीं सुन सकांगे, पर जिन्हां ने कदी गुरबाणी नूं गहराई नाल पढ़िया है, रोज रोज पढ़दियां नवा रस ते गुरबाणी नित नवी, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। बोल जो पुराने नामन वो नवे दातार दे जो सदा नवीन है, उसदे बोल ने। कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक, लागत ही भोए गिर परया परया करे जे छेक। ये मैं सुनिया कि बाणी दा बाण लगन दा की मैं सुनना सुनिया, सुनदे ही लागत ही भोए गिर परया, जमीन ते आ गया, मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक बन गया। शब्द दा तीर की लग्या, हुण मैं हर एक दे कदमां दी खाक हो गया। परा करेजे छेक, करेजे च छेक किस चीज दा? बिरहे दा, बैराग दा। कि मैं सुनिया कि बिरहा पैदा हो गया, बैराग पैदा हो गया। कि मैं सुनिया कि मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक हो गया। जिस ढंग नाल सिख अपना स्वरूप पेश करता है और आम मंदिर मस्जिदां दे जाण वाले धार्मिक बड़ा शुद्ध हंकार आउंदा है इन्हां कोल, ये भी मैं अर्ज करदे हां। कहंदे ने एक पापी कोल, एक गुनाहगार कोल हंकार करने वास्ते कुछ भी नहीं आउंदा, एक चोर कोल हंकार करने वास्ते कुछ भी नहीं आउंदा। समाज दे किस तरह आ सकता है कि मैं माड़ा मोटा चोर नहीं वड्डा चोर हां, किस तरह अपने हंकार नूं प्रगट करेगा? समाज दे चोर है, यार है, दुराचारी है, ठग है, उहदा हंकार टिक नहीं सकता। चोरी दा की हंकार, ठगी दा की हंकार, पर मनुख दान दा ते हंकार कर सकता है, ज्ञान दा ते हंकार कर सकता है, कीते हुए नितनेम दा हंकार कर सकता है, कीर्तन करन दा हंकार कर सकता है, कीर्तन सुनन दा हंकार कर सकता है। इस वास्ते कुछ तार्किक लोग कहते ने शुद्ध हंकार नाल भरे हुए चेहरे मंदिर मस्जिदां जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकबाल ने इत्थों ही तनस कर दी सी, बड़ा शुद्ध हंकार देखण नूं मिलदा है, धर्म दा हंकार, ज्ञान दा हंकार। असी गुरबाणी सुन के आया, नमाज पढ़ के आया, इसदा हंकार। हद हो गई। उसने ही सुनिया कीर्तन जो सारियां दे चरनां दी खाक हो गया। भाई साहब भाई वीर सिंह कहंदे ने मेरे छुपे रहण दी इच्छा, हुण ते मैं बिल्कुल छुप जाना चाहता, मिट जाना चाहता। ऐसे पैरां दे थल्ले हो जावां किसी दी निगाह भी मेरे ते ना पै, मेरे छुपे रहण दी इच्छा। ते छुप ते हो ही सकदा जो कदमां ते थल्ले हो जाए। कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक, लागत ही भोए गिर परया परया करे जे छेक। अगर सुन लिया तो महाराज कहते सुनदियां ये मनुख मामूली नहीं होवेगा, निरा इसदे दुख ते पाप ही नाश नहीं होणगे, ये सिद्ध पुरुष हो जाएगा, इहदे कोल वाक सत्य आ जाएगी। जिसने परमात्मा दा बोल सुन लिया वो बोल हुण उस मनुख दे बोलां दे विच मिश्रित हो जाएगा और उसका बोल वाक सत्या नूं जन्म देवेगा। जिन्हें परमात्मा दा बोल सुन लिया कन्नां दे राहीं, परमात्मा दा बोल उहदी ज़बान ते बैठ जाएगा। प्रभ जी बसे साध की रसना, उहदी ज़बान ते परमात्मा दा बोल बैठ जाएगा। ते जिहदी ज़बान ते परमात्मा दा बोल है, बोल व्यर्थ नहीं जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। सुनिए सिद्ध, परमात्मा दा नाम सुन के सिद्ध बन जाएगा, उहदे कोल वाक सत्य आ जाएगी। कहंदे ने सिद्ध पुरुष कोल की आउंदा है, उहदे हत्थां 'च बरकत आउंदी है, उहदे कदमां दे 'च क्रांति आउंदी है,
ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਰਗੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਥ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਚ ਨੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇ, ਨੱਥ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਸਨਾ ਕੰਨ ਨਾਸਕਾ ਤਵਚਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ तमाम ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਲਿਆ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹਿ ਬਸ ਕੀਨੀ ਪੰਚੋਂ ਕਾ ਮਿਟਣਾ। ਇਹ 10 ਬੈਰਾਗਣਾ ਇੰਦਰੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਲਵੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਲਵੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦਇਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਣਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੀ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਲੱਜਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਸੂਝ ਬੂਝ ਵੱਧ ਗਈ, ਸ਼ਰਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, इतना संकोच, इतनी शर्म। उस वक्त अकाली जी ने तो इतना ही जवाब दिता सी, कहते मैं हां ते कुछ नहीं, सारा कश्मीर मेरा सन्मान करदा है, शर्म नाल मेरा सिर झुक जांदा, मैं की करा। बिरती संकोचमई हो जाती है। लोकी सन्मान देंदे ने, इतनी मेरी पात्रता नहीं है। दूसरा, इस सन्मान तो छुपे रहने की चाह है, इस वास्ते संकोचमई बिरती है। समझ वधदी है, संकोच वधदा है। समझ वधदी है, शर्म वधदी है। बेसमझी है, बेशर्मी है। भुल के भी इस चक्कर च ना पै जाना कि जिथे शर्म हया कोई नहीं, वो समझदार होवेगा, बिल्कुल नहीं, बेसमझ होवेगा, कोई समझ नहीं है। आम लोगों का ऐसा ख्याल है की होया बेशर्मी है, समझदार ते हैं। ये किस तरह हो सकता है? समझदार होवे ते बेशर्म होवे, हो ही नहीं सकता। शर्म हया समझ तो पैदा होती है, बेसमझी तो बेशर्मी उसका जो है जन्म होता है। जितनी समझ वधदी है, संकोचमई बिरतियां जो है अंदर जन्म लैंदियां ने, शर्मीलापन भी उसके अंदर आ सकता है। साहिब कहते हैं अगर उसने नाम सुने तो सिद्ध बन जाएगा, पीर बन जाएगा, नाथ बन जाएगा, अपने इंद्रियां काबू कर लेगा, नथ पा छड़ेगा, देवता हो जाएगा। हाँ जी। सुनिया धरता वल आकाश, सुनन दे नाल उसनू धरती दे राज दा पता चल जाएगा
कि धरती ਨੂੰ किसने चुकिया, क्योंकि पुराणक मत यह है कि जमीन दे थल्ले धौला बैल है, चिट्टे रंग का एक बैल है, उसने चुकी हुई है। महाराज कहते परमात्मा का नाम जो सुन लवेगा इस धरती के राज का भी उसनों ज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब जिसनों असी साइंटिस्ट कहते हैं, विज्ञानक, परमात्मा का नाम सुन के विज्ञानक भी हो सकता है। और विज्ञान के संबंध में बड़ी अगम्मी खोजा ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा समा हो गया। महाराज कहते ने परमात्मा का नाम जो सुन लेंदा है उसनों पता चल जाता है आकाश किस तरह खड़ा है और ये धौला बैल की है और जमीन किस दे आसरे ते खड़ी है, इस सारी सच्चाई का उसनों पता चल जाता है। हाँ जी, सुनिए दीप लो पाताल। जितने जजीरे ने आईलैंड जिन्होंने कहते ने दीप, हिंदी दे कहते ने, संस्कृत दे दीप, पानी ने जो अपने विच, सागर ने जो अपने विच धरती नूं पैदा किया होया, थां थां ते इन्हां नूं दीप कहते रहे। परमात्मा का नाम सुनन नाल सारे दीपां का पता चल जाता है। हैरानगी की गल है, उन्हां दिनां च हवाई जहाज नहीं सन, 9 खंड पृथ्वी का भी जिक्र है, सारे दीपां का भी जिक्र है, खंडा ब्रह्मंडा का भी जिक्र है, और इस तरह दियां कोई दूरबीना खुरदबीना नहीं सन, कोई हवाई जहाज भी नहीं सन। जिंदगी बड़ी छोटी है, सारा किस तरह भ्रमण किया होगा। पहाड़ां दियां गल्लां, दीपां दियां गल्लां, खंडां ब्रह्मंडां दियां गल्लां, सागर दियां गल्लां, परमात्मा का नाम सुनिया, आत्मा दे तल ते पहुंचे ने, आत्मा व्यापक है। तो इस तरह के मनुख नूं कहंदे ने सर्वज्ञ, सब कुछ दी समझ आ गई, सब कुछ दा जो है पता चल गया। उन्होंने पता चल जाता है पाताल का, उसनों पता चल जाता है तरह तरह के जो है जजीरियां का, और उसनों पता चल जाता है तरह तरह के खंड ब्रह्मंडा का। हाँ जी, सुनिए पोह न सके काल। समय का उस दे ते प्रभाव नहीं पैंदा। कहते ना समय दे नाल चलना चाहिए, समय दे नाल बदलना चाहिए। काल तो मुराद वक़्त। आम लोग कहते हैं वक़्त के मुताबिक चलो, समय के मुताबिक चलो। तो समय के मुताबिक चलन तो मुराद की होंदे, कहते जो समाज करता है वही करो। समाज सारा शराब पिया पींदा है, पियो शराब। समाजिक तल ते स्त्री नगन घूम रही है, घूमो नंगे। समाजिक तल ते अजदवाजी जिंदगी, विआह शादियां गुड्डी गुड्डे दा खेल बन के रह गईयां, सवेरे शादी शामी तलाक। तो समाज नाल चलो फिर। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ इस वक़्त के प्रभाव हेठ आए ने, वक़्त उन्होंने खा जाता है, समा उन्होंने नष्ट कर देता है, समय की मार हेठ आके बर्बाद हो जाते हैं। महाराज कहते हैं परमात्मा का जो नाम सुनते हैं, समा उन्होंने प्रभावित नहीं करता। समय का वक़्त का प्रभाव उन्होंने ते नहीं पैंदा, काल का प्रभाव उन्होंने ते नहीं पैंदा, क्योंकि उन्होंने अकाल की गल सुन ली। वो अकाल नाल जो है जुड़े ने, सुने पोह न सके काल। हाँ जी, नानक भगतां सदा विगास। भगतां दे मन दे सदीवी विगास बनिया रहिंदा, सदीवी खेड़ा बनिया रहिंदा। क्यों? सुने दुख पाप का, क्योंकि परमात्मा दा नाम सुनदे ने, सुन के उन्होंने इतनी उच्ची अवस्था प्राप्त हो जाती है। वास्तविक सुनना की है, मैं फिर दोहरावां, तुसीं आखो असीं ते बहुत सुनिया, ना तन दे च रोग मिटे, ना मन का सोग मिटिया, तो यह जड़ियां प्राप्तियां ने यह भी कोई नहीं हुई। तो मैं आखांगा नहीं सुनिया, बस नहीं सुनिया। जी आखिए सुनिया है तो इसका मतलब गुरु बाबा जी गलत कह रहे हैं फिर, क्योंकि ये कुछ तो होया नहीं जिंदगी नहीं, सुनिया ही नहीं। तो तुसी आखोगे असी सुनते पाया, नहीं ये सुनना नहीं है। तो फिर सुनना की है, इसका खुलासा दूजी तीजी पौड़ी नूं आधार बना के मैं कल थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश करांगा। अज थां थां ते समागम सन, घरां दे गुरुद्वारे भी 2 समागम होए। इस तरह संगतां दी भी मसरूफियत रही, दास दी भी मसरूफियत रही। ते चेला राम जी आए,
ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਗਮ ਸਨ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।